Now let's have a look at question number 27. I equals to integral 0 to pi by 2 cos square x upon cos square x plus 4 sin square x. Now if you look at this particular expression, तो आपको ऐसा दिखेगा कि सब cos square में एक ही sin square है. So let's try to convert that into cos square as well. Correct. So integral 0 से pi by 2 cos square x divided by cos square x plus 4 times 1 minus cos square x dx. So this will become 0 से pi by 2 cos square x divided by cos square x plus 4 minus 4 cos square x, so it becomes 4 minus 3 cos square x dx. Correct. So I have cos square x in denominator, I have cos square x in numerator, but when you look at the numerator, तो numerator में आपको सिर्फ cos square है, यहाँ पे हमारे पास -3 वगैरह वाली टर्म्स भी अवेलेबल है. तो क्या करेंगे, ध्यान से देखना. What I am going to do is I am going to multiply by and divide by -3 0 से pi by 2. तो this becomes -3 cos square x divided by 4 minus 3 cos square x और dx है ना. Let me take this dx little bit far, क्योंकि मैं एक और स्टेप यहाँ पे करूंगा. क्या, तो कि नीचे 4 भी दिख रहा है, तो लेट मी से +4 एंड -4. करेक्ट. एंड नाउ इफ आई स्प्लिट देम अप का मतलब 0 से pi by 2 समथिंग लाइक दिस 4 minus 3 cos square x divided by 4 minus 3 cos square x minus 4 upon 4 minus 3 cos square x और dx. So this 2 will get cancelled and it will be converted something like this 0 से pi by 2 1 minus. यहाँ को अब कैसे सॉल्व करेंगे? How can we solve this 4 minus 4 upon 3 cos square x dx? This is the challenging task for us. ये यहाँ तक तो हमने कर लिया, मुझे ये सिंप्लीफाई करना है. How am I supposed to do this particular problem? देखो मैं इसको पहले ना एक काम करते हैं, यहीं से हम स्प्लिट कर लेते हैं. स्प्लिट इन द सेंस के इंटीग्रल सेपरेटली दे देते हैं. तो एक हो जाएगा 0 से pi by 2 1 dx माइनस माइनस प्लस 4 कांस्टेंट आउटसाइड 4 by 3 0 से pi by 2 लेट मी से 1 upon 4 minus 3 cos square x dx. और इसे हम I1 बोल देते हैं. क्या करते हैं, I1, क्योंकि ये तो 1 है, इंटीग्रल आराम से सॉल्व हो जाएगा. लेट मी कॉल दिस I1 जो है हमारा 0 से pi by 2 1 upon 4 minus 3 cos square x dx. Now how can we solve this kind of a problem? तो देखो मैं अब आपको 2 स्टेप बताने वाला हूँ. फर्दर you people will be solving. तो 0 से pi by 2 I am dividing numerator as well as denominator both by cos square x. So 1 upon cos square is sec square x. Same thing over here, 4 sec square x minus 3 dx. And one more step which I am going to show you is something like this, sec square x. What can we replace for sec square x? Identity. Sec square x minus tan square x equals to 1. So it will be 1 plus tan square x minus 3. Correct. Let me give you one more step. तो क्या हो जाएगा, sec square x 4 minus 3, isn't it? That will be 1 plus 4 times tan square x dx. And I guess अब यहाँ पे अगर आप लेट कर लोगे tan x equals to t, तो आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा. करेक्ट. sec square x dx equals to dt. Make sure that you change the limit. जब x 0 है तो t 0 और x pi by 2 है तो ये तो t infinite हो गया, because I know that tan pi by 2 is infinite, isn't it? है ना. तो ये 0 से infinite हो जाएगा. एंड जब infinite होता है तो थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करना, डिफिकल्ट कुछ नहीं है. 0 से भले infinite हो जाए, ये हो जाएगा dt अपॉन 1 plus 4t square x square plus a square या a square plus x square, आप जो बोलो वो उसकी फॉर्मूला लगा दो. अगर आप चाहो तो पहले 4 कॉमन निकाल सकते हो, isn't it? बेसिकली 4 नहीं होगा, वो होगा 2, क्योंकि आपका 2t का होल स्क्वायर बनेगा तो 4t स्क्वायर होता है. यू कैन डू दैट, सिंपल. तो उसको कॉमन निकाल के आप जो भी होगा वो I1 मिलेगा आपको, और वो I1 की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे इंस्टेड ऑफ दिस इंटीग्रल. ये इंटीग्रल कर लेंगे 1 का x, लिमिट पुट कर लेंगे, एंड देन विल इजीली गेट अवर आंसर.
कोई डिफिकल्टी होगी नहीं, आराम से आप लोग यहां से इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को प्रोसीड कर सकते हो। दैट्स व्हाट आई बिलीव कि आपसे हो जाएगा, है ना। इजंट इट? हम हिंट्स और सॉल्यूशन के रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो ये काइंड ऑफ सॉल्यूशन हो गया, बट एट द एंड थोड़ी हिंट भी दी है जिससे आप लोग थोड़ा और फर्दर इसको सॉल्व करके आंसर लाओगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, इट इज क्वाइट यूनिक। पाई बाय 6 से पाई बाय 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डिवाइड में स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x dx, है ना। जब ऐसा कोई एक्सप्रेशन देखते हैं तो पहला तो सोचना ये है कि करे कैसे, है ना। लिमिट तो पुट करेंगे एट द एंड, बट हाउ शुड बी बिगिन कैसे करें इस टाइप के प्रॉब्लम को कि जिससे हमारा काम थोड़ा इजी बने, इजंट इट। तो एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, फ्यू स्टेप्स है जो थोड़े से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आप लोग ध्यान दोगे और फ्यूचर में आप लोग उस तरह से कुछ यूटिलाइज कर सकते हो। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम डूइंग समथिंग लाइक दिस। स्क्वायर रूट के अंदर ही माइनस 2 बार दिया है, सो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इसको देने के साथ साथ आपको देखो कुछ ऐसा भी सोचना पड़ेगा कि क्यों ऐसा किया। तो आई वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग इन द डिनोमिनेटर इन सच अ वे। क्यों इन सच अ वे सोच रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है साइन 2x यानी कि 2 sin x cos x होगा। अगर मैंने 1 sin square x cos square x वाली फॉर्मूला बना दी तो देयर मे बी चांसेस फॉर मी। अच्छा, वो आपने ऐसा भी सोचा होगा तो सर सिंपली +1 और -1 दे दिया होता तो भी तो हमारा काम बन जाता। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, बट लेट मी शो यू कि उससे होता क्या। करेक्ट, अगर सपोज हमने सीधे सीधा लिख दिया होता 1 + sin 2x - 1, इजंट इट। तो ये 1 के लिए तो आपने लिख दिया sin square x + cos square x और ये हो जाएगा 2 sin x cos x - 1। ये आपका बनता है sin x + cos x का स्क्वायर -1। नाउ द डिफिकल्टी क्या है कि आप इसे लेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसे लेट करोगे तो ऊपर जो है वो एज इट इज नहीं आएगा। साइन का डेरिवेटिव cos और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन हो जाता है, तो इट बिकम्स sin x cos x - sin x। डू वी हैव समथिंग इन न्यूमरेटर लाइक दैट? नो। जिसके लिए हमने क्या किया, तो हमने इस पर्टिकुलर टर्म को पहले नेगेटिव दे दिया और फिर +1 -1 अब ऐड करेंगे समथिंग लाइक दिस, -+1 -1 sin 2x dx। करना ऐसा ही है, बट ध्यान रखना है कि कैसे एडजस्ट होगा। सो अब क्या करेंगे, π/6 से π/3 sin x + cos x स्क्वायर रूट, ये माइनस अंदर दे दो तो ये -1 हो जाएगा। सीधी सी बात है ना, करेक्ट। एक काम करते हैं, वो -1 वाला यूटिलाइज नहीं करते, कुछ ऐसे लिखते हैं। लेट मी से दिस इज +1 एंड दिस इज -1, तो माइनस माइनस +1। क्यों ऐसे लिखा, बिकॉज मुझे 1 - sin 2x चाहिए, -1 - sin 2x नहीं। और ये अंदर जाएगा तो भी ये माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, करेक्ट। किस दो में से, इन दोनों में से। और 1 की जगह पे sin square x + cos square x माइनस, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस होगा, जो हमने बाहर माइनस कॉमन निकाला है तो वो माइनस रहेगा, 2 sin x cos x। ओके, चलो यहाँ पे वापस से थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, आई नो दैट, क्योंकि मुझे ये पॉजिटिव दिख रहा है, ये माइनस की वजह से नेगेटिव होगा। सो डेफिनेटली आई नीड टू डू समथिंग लाइक दिस ओनली। तो क्या ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो माइनस कॉमन निकाल के रखा है। ओके, चलो चलो, वेट 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 वेट, नहीं 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 नहीं, सॉरी अगेन, है ना। ऐसे ही रखेंगे। तो साइन कन्वेंशन में थोड़ा सा ध्यान दे रहे थे हम, तो प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस कॉमन निकाला ना। इफ आई ओपन दिस ब्रैकेट तो दिस विल बिकम नेगेटिव। सो यस, डेफिनेटली ये सब करेक्ट है, डोंट वरी। π/6 से π/3 sin x + cos x डिवाइड बाय स्क्वायर रूट में ये +1 माइनस ये हो गया आपका sin x - cos x का स्क्वायर। क्या बन गया, sin x - cos x का स्क्वायर और dx। अब आप देखो कि अगर मैंने sin x - cos x को t लेट किया, है ना, लेट sin x - cos x = t, तो sin का डेरिवेटिव cos x, cos का माइनस साइन, तो प्लस हो गया = dt/dx। सॉरी, हाँ बराबर।
तो न्यूमरेटर देखो हमारा सेट हो गया, लेकिन लिमिट है, लिमिट के भी ध्यान में रखना पड़ेगा हमें। सो व्हेन x इक्वल्स टू पाई बाई 6, t कितना होगा, तो क्या साइन पाई बाई 6 1/2 माइनस रूट 3/2, कॉमन निकाल के कॉमन एलसीएम में 2 लिख दिया नीचे। पाई बाई 3 में सेम थिंग होगा, लेकिन नाउ रूट 3 माइनस 1/2 होगा। सो आपका इंटीग्रल क्या बन गया देखना ध्यान से, रूट 1 माइनस रूट 3/2 से। क्यों? क्योंकि पाई बाई 6 लोअर लिमिट है, उसके लिए t की वैल्यू आई है 1 माइनस रूट 3/2 और अपर लिमिट के लिए वैल्यू आई है रूट 3 माइनस 1/2। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स जो हो जाएगा dt, और नीचे बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, है ना। अब आप में से बहुत सारों ने ये सोचा होगा, अच्छा वेरी गुड सर, ये तो अब फॉर्मूला आ गई है, हम पुट कर लेंगे, थैंक यू सो मच, हम आराम से यहाँ से कर लेंगे। यू कैन, बट देयर इज अ स्मॉल प्रॉब्लम कि जैसे कि आप दिख रहा है ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, एंड इफ आई रिप्लेस इंस्टेड ऑफ t माइनस टी, तो मुझे ये पता चलेगा कि ये इवन फंक्शन है। ध्यान से सुनना, मुझे क्या पता चलेगा कि ये इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन की फॉर्मूला के हिसाब से ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रल 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1/2 dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। इसमें अब आप फॉर्मूला लगा दो और लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट रख दो, यू विल बी गेटिंग योर आंसर। आर यू गेटिंग? तो हड़बड़ी नहीं करना, व्हेनेवर डेफिनेट इंटीग्रल इज देयर ना, थोड़ा सा सोचो हर बार कि क्या हमारा ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो अगर ऑड हो रहा है या इवन हो रहा है, इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो आपको ये छोटी छोटी चीजों में ध्यान रखना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ इट इज सपोज टू बी सॉल्व। एम आई क्लियर? चलो लेट्स गो फर्दर। तब तक के लिए आप लोग जो लिखना चाहे वो लिख सकते हो, अगर किसी का लिखना रह गया हो डोंट वरी, यू कैन रिवाइंड द वीडियो एंड राइट इट डाउन इन अ प्रॉपर वे। आई एम गोइंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29, एंड मैं ये लिटरली सॉल्व नहीं करने वाला, आई एम जस्ट गिविंग यू द क्वेश्चन। 0 से 1 dx square root of 1 plus x minus square root of x. So if I say just simply take rationalization, आपसे ये हो जाएगा। So I don't think so कि rationalization से ज्यादा इसमें कुछ करना है। तो just simply multiply root 1 plus x plus root x divide by root 1 plus x plus root x। नीचे a square minus b square, ऊपर a plus b, नीचे x x कट होके 1 बचेगा, and you can just simply put the formula of integration and put the limit. But yeah, 30 is a good one. इंटीग्रल I 0 से पाई बाई 4, अगेन देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इन न्यूमरेटर डिवाइड बाय 9 प्लस 16 साइन 2x dx। तो जैसे इसमें देखा हमने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है और नीचे भी साइन 2x था, तो हमने समहाउ माइनस मल्टीप्लाई किया, फिर हमने प्लस और माइनस 1 दिया, सो दैट वी कैन जनरेटेड समथिंग साइन एक्स माइनस कॉस। अब यहां क्या करेंगे, लेकिन एक चीज क्लियर होती है कि जब भी ऐसा कुछ दिखे तो यहाँ पे भी देखो हम लेट तो वही करने वाले जो हमने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 28 में किया था। कैसे करेंगे वो एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, तो पे अटेंशन। क्या कर रहे हैं, लेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू टी, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, और ये dx इक्वल्स टू dt। लेकिन लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, अगर x की वैल्यू 0 है तो साइन 0 0 कॉस 0 1, तो -1 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू पाई बाई 4 है तो दोनों वैल्यू सेम होगी, तो t की वैल्यू 0, तो मेरा इंटीग्रल हो गया -1 से 0। व्हाट डज इट बिकम, -1 टू 0। अब यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ओ बिफोर दैट वेट, हम ये सब करें उससे पहले एक चीज रह गई, वो है साइन 2x। हाउ आर वी गोइंग टू जस्टिफाई साइन 2x? तो भाई ये जो लेट किया है वो यहां पे ले लो, एंड लेट मी से इसका स्क्वायर, सो कैन आई से टी स्क्वायर, है ना। क्यों स्क्वायर लिया, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो हमें पता है साइन 2x मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, तो के साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर। ये 1 हो गया, ये हो गया साइन 2x, है ना, माइनस उधर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा, तो इट विल बिकम 1 माइनस टी स्क्वायर। तो आई कैन इजीली रिप्लेस साइन 2x की जगह पे 1 माइनस टी स्क्वायर। और ये सारी चीजें अब हम क्या करेंगे, हमारे दिए हुए इंटीग्रल में लिख देंगे, यानी कि इंटीग्रल, है ना, इसमें
तो ये क्या बन जाएगा I, नाउ इट इज -1 to 0 sin x प्लस cos x dx हो गया dt डिवाइड बाई 9 प्लस 16 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, तो ये है -1 से 0 dt डिवाइड बाई 25 माइनस 16 टी स्क्वायर। क्या बन गया? सो फर्दर क्या करेंगे? सिंपल सा आपको इंटीग्रल मिल गया। एज यू कैन सी दिस इज 5 स्क्वायर माइनस 4 टी स्क्वायर, है ना। सिंपली पुट द फॉर्मूला एंड यू विल बी गेटिंग द आंसर। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे आपको कोई भी डिफिकल्टी होगी आगे इसको सॉल्व करने में। मूविंग फर्दर लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। हाँ देखो, मैं हर एक में आपको इस तरह से आगे करने के लिए क्यों दे रहा हूँ, तो आई टोल्ड मेनी टाइम्स बिफोर ऑल्सो कि यू नीड टू प्रैक्टिस। यहाँ पे भी फॉर्मूला रखने के बाद आपको लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट विल गिव यू अ डेफिनेट आंसर। सिंपल। चल नाउ लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 31। इट सेज I इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to π/2 sin 2x इंटू tan इनवर्स sin x। अब देखो, इसमें देख के आपको शायद थोड़ा ऐसा एक बार फील होगा कि यार डेफिनेटली वी कैन गो फॉर दी सब्स्टिट्यूटिंग साइन इनवर्स x। तो यस, वो करेक्ट होगा। क्यों? तो मैं एक स्टेप लिख के बताता हूँ। 0 से π/2 कैन वी से दिस इज 2 sin x cos x और ये इंटू tan इनवर्स में sin x। करेक्ट। तो इससे अगर ऐसा लेट करें कि लेट sin x इक्वल्स टू t, है ना। sin x का डेरिवेटिव होता है cos x dx इक्वल्स टू dt। when x equals to 0 तो t भी 0, x π/2 तो t की वैल्यू 1, क्योंकि sin π/2 1 होता है। वी ऑल नो दैट, इजंट इट? करेक्ट। चलो, सो इसका मतलब क्या आपका इंटीग्रल कन्वर्ट हो गया 0 से 1 टू t, लेट्स से 2 कॉमन इंटू t, cos dx dt में चला गया और ये हो गया tan इनवर्स t dt। अब क्या करना है? वेरी सिंपल। क्या करोगे? सॉल्व दिस बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना। ये भी मदद कर लेता हूं। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, इजंट इट? u इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस इंटीग्रल में डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रल ऑफ v dx कर्ली ब्रैकेट क्लोज dx। ये रहे आपके फंक्शंस। लिमिट तो चेंज करनी नहीं है वापस, बट ध्यान रखना जब आप पार्शियल बाय पार्ट से जब सॉल्व करते हो ना, तो आपका ये जो पहला पार्ट आता है जिसमें आप ऐसे लिख दोगे tan इनवर्स t और इंटीग्रल ऑफ t, तो इंटीग्रल ऑफ t करोगे t²/2 आएगा। सो डोंट पुट लिमिट इन दिस ओनली, ये आपको पूरे पहले वाले टर्म में लिमिट पुट करनी पड़ेगी। माइनस इंटीग्रल 0 to 1 tan इनवर्स t का डेरिवेटिव 1/1 प्लस t², t का t²/2 इंटू dt। फिर इसको सॉल्व करना कैसे है आपको आता है ना। 1 प्लस t² है, ऊपर भी t² है, तो प्लस और माइनस 1 एडजस्ट करो और यू कैन गो फॉर दी कौन सा फॉर्म? नॉन इम्प्रॉपर रैशनल फॉर्म। करेक्ट, वो वाले फॉर्म से भी आप कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ जरूरत है। अब जब सिंपली 2 बाहर निकल दो और ऊपर 1 प्लस माइनस 1 कर दो, यू विल बी डन विद दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। एम आई क्लियर? नाउ लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 32। नाउ इफ यू लुक एट दिस ना, तो आपको इमीडिएटली ये आइडिया आएगा कि ऊपर x है ना, इसकी वजह से हम कुछ कर नहीं पा रहे। सो व्हाट कैन वी डू? वी कैन डू समथिंग लाइक दिस यूजिंग द प्रॉपर्टी, जहां जहां पे x है पाई माइनस एक्स, tan पाई माइनस एक्स sec पाई माइनस एक्स प्लस tan पाई माइनस एक्स dx। Now पाई माइनस, इफ यू लुक एट प्रॉपरली इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं माइनस का मतलब, और पाई से माइनस क्लॉकवाइज विल गो इनटू द सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका tan फंक्शन जो है वो नेगेटिव होता है। सो दिस विल बिकम माइनस पाई माइनस एक्स tan x। सेम थिंग फॉर द sec भी वहां पे नेगेटिव होगा क्योंकि cos नेगेटिव होता है। सो माइनस sec x माइनस tan x dx, एंड वी कैन टेक नेगेटिव कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, है ना। तो कट हो जाएगा और हमें मिलेगा पाई tan x डिवाइडेड बाई sec x प्लस tan x, और यहां पे आएगा माइनस माइनस प्लस, इजंट इट? नहीं, माइनस क्यों? माइनस तो हमने कट कर दिया, सो देयर विल बी नो माइनस। सिंपली सॉरी, मतलब प्लस नहीं होगा, सिंपली माइनस 0 to पाई
x tan x डिवाइडेड बाय sec x प्लस tan x dx। तो ये तो आपका i ही है, सो इट बिकम्स 2i इंटीग्रल 0 टू पाई, आई कैन टेक पाई कॉमन, tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx, डेफिनेटली यहाँ पे dx आएगा। लेकिन फर्दर कैसे सॉल्व करें, तो देखो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें की शॉर्टेज है, जैसे कि sec स्क्वायर अगर ऊपर होता तो हो जाता, नीचे कुछ tan स्क्वायर होता तो कुछ ट्राई करते। तो आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हो, पहले तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 0 से पाई, ये 2 ले लिया। tan x कैन बी रिटर्न एज sin x अपॉन cos x, और ये भी 1 अपॉन cos प्लस ये भी sin अपॉन cos। तो cos cos हमारे एलसीएम में कट हो गए and we left with sin x अपॉन 1 प्लस sin x। और एक स्टेप आई गेस आपको और बता देता हूं, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस 0 टू पाई, इसका रैशनलाइज 1 माइनस साइन स्क्वायर x डिनोमिनेटर में, और ऊपर हो जाएगा sin x इंटू 1 प्लस साइन x, 1 नहीं माइनस, प्लस नहीं सॉरी, माइनस साइन x dx। और थोड़ा सा और ध्यान से देखो तो इट विल बिकमिंग समथिंग लाइक दिस 0 से पाई, sin x माइनस साइन स्क्वायर x, नेवर माइंड, लेकिन नीचे जो है वो cos स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट। कैसा बन रहा है, sin x माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x dx, जिससे फर्दर आपका स्टेप क्या बनेगा, पाई बाई 2 0 से पाई, रिवर्स एलसीएम कर लो, साइन अपॉन कॉस 10, सो ये हो जाएगा sec x tan x माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर। देन यू कैन डू योरसेल्फ, व्हाई, बिकॉज sec x tan x इज द डायरेक्ट फॉर्मूला किसकी, sec x का डेरिवेटिव sec x tan x होता है, तो इंटीग्रल ऑफ sec x tan x विल बी sec x प्लस, अगर आप सोच रहे हो कि tan स्क्वायर x, तो क्या भाई हाँ ऐसा तो हमने कहीं किया हुआ है, कैसे होगा, तो डायरेक्ट आइडेंटिटी का यूटिलाइजेशन करना है, sec स्क्वायर x माइनस 1, वो आपको डायरेक्ट आंसर दे देगा, क्यों, क्योंकि sec स्क्वायर x का इंटीग्रल होता है tan x और 1 का x हो जाएगा, जस्ट पुट द लिमिट एंड यू विल बी गेटिंग द आंसर, है कि नहीं, एकदम सिंपल है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, डोंट वरी एट ऑल, आराम से आपसे होगा, है ना, हड़बड़ाहट करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 33। अब ये एक्चुअली तो यार समझाना भी नहीं चाहिए, आप लोग आराम से कर सकते हो, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 3 dx। So to solve this problem, I can't go with the modulus at a time. एक साथ में तो मैं मॉड्यूलस लिखूंगा तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो what we can do is we can split into something like this. Integral 1 to 4 modulus of x minus 1 dx, integral 1 to 4 modulus of x minus 2 dx, and same में 1 to 4 modulus of x minus 3 dx. अब इसे I1 बोल दो, इसे I2 बोल दो और इसे I3 बोल दो, 1 बाय 1 आप सॉल्व कर सकते हो, मैं आपको आइडिया दे रहा हूं क्या करना है। तो वी नो दैट मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 कैन बी रिटन लाइक दिस, x माइनस 1 व्हेन x विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड व्हेन x इज लेस देन 1। तो इस पर्टिकुलर में लिमिट है 1 से 4, यानी कि जो भी है वो 1 या उससे बड़ा है, तो इसमें से सिर्फ यही फंक्शन आएगा, तो आपका I1 हो जाएगा 1 to 4 x माइनस 1 dx, करेक्ट। उसी तरह से इसे जब सॉल्व करोगे तो मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2, तो ये होगा x माइनस 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड माइनस ऑफ x माइनस 2 व्हेन लेस देन 2। तो आपको इसमें करना पड़ेगा स्प्लिट, कहां से कहां, 1 से 2, जिसमें माइनस ऑफ x माइनस 2 dx आएगा, और फिर 2 से 4 जिसमें सिंपली x माइनस 2 dx आएगा। Similarly, you are supposed to do for this, तो x minus 3 when x is greater than equals to 3, और minus of x minus 3 हो जाएगा for this one when x is less than 3। तो आपको भी इसको दो में डिवाइड करना पड़ेगा, 1 से 3 एंड 3 से 4, और फिर आपको पता है इसका इंटीग्रेट कैसे किया जाता है, you know how to put the limits and you can get it done. Am I clear? So for this is the hint I am trying to give you, क्योंकि हमने ऐसे ऑलरेडी प्रॉब्लम्स किए हुए हैं, करेक्ट। So till here you can pause the video and note it down. Now let's go for question number 34. In this we have integral 1 to 3 dx upon x square into x plus 1. Now if you think के भाई चलो लिमिट नहीं है ना, forget the limit. If you ignore the limit, तो आपको ये कौन से टाइप का इंटीग्रल दिख रहा है ना। So I can observe that this is something like this 1 upon x square into x plus 1, यानी कि by
पार्शियल फ्रैक्शन a अपॉन x प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 1, isn't it? एंड पार्शियल फ्रैक्शन मेथड वी आर वेरी मच अवेयर के कैसे सॉल्व होती है. फिर भी मैं यहाँ पे आपको थोड़ी मदद कर देता हूँ. तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, 1 इंटू ए एक्स इंटू एक्स प्लस 1, b इंटू एक्स प्लस 1 और c के साथ एक्स स्क्वायर. वन बाय वन यू कैन टेक सम वैल्यू, और आप चाहो तो कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हो. एज एन आई ऑलवेज टेल कि किस तरह से कर सकते हैं. तो वैल्यू लेने के लिए पहला -1 एक पॉसिबल है, दूसरा 0 पॉसिबल है. देन समहाउ यू नीड टू गो फॉर द कोफिशिएंट, क्योंकि देन अगेन यू कैन टेक 0. एक बार 0 ले लिया तो वापस 0 नहीं ले सकते. बट या मे बी यू आर टेलिंग सर इफ आई वांट टू टेक 1, तो यू कैन, देयर इज नो ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग दैट. और अगर आप चाहो तो कंपेयर भी कर सकते हो कोफिशिएंट को. तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ax स्क्वायर प्लस ax प्लस bx प्लस b प्लस cx स्क्वायर. सो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर x एंड कांस्टेंट. तो x स्क्वायर के कौन से हैं? a प्लस c. x के कोफिशिएंट a plus b and constant is only b. तो I got b equals to 1. b की वैल्यू 1 यहां रखो, a equals to -1. अगर a -1 यहां रखोगे तो c equals to 1. So this become 1 upon x square into x plus 1 equals to -1 by x plus 1 by x square plus 1 upon x plus 1. और ये as it is आप कहां पुट कर दोगे? इंटीग्रल में. So integral 1 to 3. This whole term will look something like this, -1 upon x plus 1 upon x square plus 1 upon x plus 1 dx. और इसका इंटीग्रल करना आई डोंट थिंक सो किसी के लिए भी डिफिकल्ट होगा. सो -1 upon x यानी कि माइनस लॉग मॉड्यूलस में x प्लस 1 upon x स्क्वायर का क्या होगा? व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x स्क्वायर? तो क्या आप ऊपर ले जाओगे? Isn't it? फिर आप बोलोगे x रेज टू -2 प्लस 1. सो ये हो जाएगा x रेज टू -1 अपॉन -1 प्लस लॉग मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 लिमिट 1 से 3. फर्दर माइनस लॉग मॉड्यूलस ऑफ x -1 अपॉन x प्लस लॉग मॉड्यूलस में x प्लस 1 लिमिट 1 से 3, है ना. अब क्या करना है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यू कैन इवन सिंप्लीफाई वन मोर स्टेप, लॉग x प्लस 1 अपॉन x, क्योंकि ये माइनस में है, -1 अपॉन x इंटीग्रल की लिमिट 1 से 3. इफ यू स्टार्ट पुटिंग वैल्यू, फर्स्ट अपर लिमिट 3 प्लस 1 4, so it will be 4/3 -1 by 3, करेक्ट. और 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 2, 2/1 2 ही बचेगा. सो log 2 -1, करेक्ट. सो log 4/3 माइनस log 2 यानी कि 1/2 -1/3 प्लस 1, है ना. सिंप्लीफाई करो यहाँ पे, ये दोनों में 2 2 कट, सो इट बिकम्स log 2/3 प्लस 2/3. देखो ये प्रूडेड वाला क्वेश्चन है. दिस इज आवर आंसर, 2/3 प्लस log 2/3. आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आपको दिख जाएगा. क्या है? हाँ, दिस इज द आंसर ऑफ, करेक्ट. सो सी, ये प्रॉब्लम मैंने इतना ज्यादा सॉल्व क्यों किया? बिकॉज मैंने इस एक्सरसाइज में एक भी पार्शियल फ्रैक्शन के प्रॉब्लम डिटेल में सॉल्व नहीं किए है. ऑलमोस्ट सारे आपको खुद से ट्राई करने को कहा था. तो आई थॉट कि चलो एक तो सॉल्व कर ले, तो यू पीपल डोंट फील लाइक कि सर कुछ तो करो, हम बाकी सब करेंगे, लेकिन आप भी कुछ कर लो. सो वही चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने एक किया, है ना. सो यू पीपल फील सेटिस्फाइड कि हाँ सर ने भी किया. सिंपल. चलो देन लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, which is given integral 0 to 1 x e raised to x dx. अब देखो ये भी पूरे के पूरा प्रॉब्लम जो है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का है. इग्नोर द लिमिट, पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट सॉल्व कर लो और फिर लिमिट पुट कर देना. कैसे करेंगे? तो कि भाई x एज इट इज इंटीग्रल ऑफ e raised to x dx 0 से 1. ये वाला स्टेप आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, हाँ, अदरवाइज यू मे कमिट अ मिस्टेक. 0 से 1 d by dx of x इंटीग्रल e raised to x dx, और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज और dx. सो x एज इट इज e raised to x का इंटीग्रल e raised to x ही होता है, -0 से 1 x का 1 e raised to x dx, x
ई रेस टू एक्स 0 से 1 माइनस ई रेस टू एक्स 0 से 1 एंड इफ यू स्टार्ट पुटिंग द लिमिट 1 इंटू ई रेस टू 1 माइनस 0 माइनस यहां पे करोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो ई रेस टू 1 माइनस ई रेस टू 0 सॉरी ई रेस टू 0 यहां पे 1 आएगा. सो दिस विल बिकम ई रेस टू 1 यानी कि ई माइनस ई रेस टू 1 माइनस माइनस प्लस 1 कट होके आंसर आ गया 1. दैट्स इट. यही तो हमें आंसर भी चाहिए था, है ना. तो प्रॉब्लम सिंपल है, कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं है. आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि कौन से टाइप का फॉर्म है. फॉर्म समझ में आएगा तो प्रॉब्लम डेफिनेटली हमसे सॉल्व हो जाएंगे, उसमें कोई डिफिकल्टी लगेगी नहीं. एम आई क्लियर? चलो देखते हैं आगे. क्वेश्चन नंबर 36. नाउ व्हाट डू वी हैव? I इक्वल्स टू इंटीग्रल -1 to 1. अच्छा देखो -1 to 1 यानी कि हमें चेक करना चाहिए ना कि फंक्शन ऑड है या इवन. cos रेस टू 4x dx. तो फंक्शन जो है वो क्या है? लेट मी से f of x इज अवर फंक्शन x रेस टू 17 cos 4x और हम रिप्लेस करेंगे x को -x से. सो माइनस एक्स रेस टू 17 cos माइनस एक्स रेस टू 4. ऐसे भी देखो cos तो इवन फंक्शन ही है तो वो तो पावर भी इवन है, वो भी फंक्शन भी इवन है. तो ये हो जाएगा माइनस एक्स रेस टू 17 cos 4x यानी कि माइनस एफ ऑफ एक्स. देयरफॉर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन. और अगर फंक्शन ऑड होता है तो आपके इंटीग्रल की वैल्यू 0. यही तो प्रूव करने को बोला है कि इंटीग्रल -1 to 1 x रेस टू 17 cos 4x की वैल्यू 0 लाके बताओ. हमने बता दी. क्यों? क्योंकि ये तो ऑड फंक्शन हो गया और अगर फंक्शन ऑड है तो डेफिनेटली उसका इंटीग्रल जो है वो 0 ही मिलना है, उसके अलावा और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है. सिंपल. आगे बढ़ते हुए लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 37. वी आर स्लोली रीचिंग टुवर्ड्स द फिनिशिंग ऑफ द एक्सरसाइज. लेकिन जैसे जैसे जा रहे हैं तो प्रॉब्लम मुझे ऐसा लग रहा है कि इजी होते जा रहे हैं. 0 से π/2 sin क्यूब x dx. इसका आंसर लाना है 2/3. अब देखो इसमें मैं आपको डेफिनेटली हिंट ही देने वाला हूं. आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस फॉर यू. क्या करोगे तो कि यू कैन नॉट सॉल्व साइन क्यूब तो कन्वर्ट इनटू sin स्क्वायर x इनटू sin x dx. स्टिल यहां पे आप मत सोचना कि sin स्क्वायर को कुछ और रख सकते हैं, बल्कि उससे बेटर है कि साइन स्क्वायर को कन्वर्ट कर लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में इंटू साइन एक्स डीएक्स. सो ये हो जाएगा 0 से π/2 साइन एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रल 0 to π/2 कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स डीएक्स. ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गई. साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस. यहां पे लेट कॉस एक्स इक्वल्स टू टी यानी कि माइनस साइन एक्स डीएक्स इक्वल्स टू dt. लिमिट चेंज होगी, प्लीज ध्यान रखना. व्हेनेवर यू डू द सब्स्टिट्यूशन आपकी लिमिट चेंज होती है. यहां पे आप ऐसा सोचोगे कि मैं 1 प्लस कॉस 2x/2 लिख दूं तो वो आप कर सकते हो, लेकिन वापस से आपको cos 2x इंटू साइन एक्स करना पड़ेगा. अननेसेसरीली वाई टू क्रिएट अ ट्रबल फॉर अस. सो सिंपल से इसको आप i1 लेट कर लो, सेपरेट करो, इंटीग्रेट करो, वैल्यू लिमिट चेंज करो, गेट द वैल्यू. इसका जो मिला होगा उसमें यहां पे रिप्लेस कर दो एंड यू विल बी एबल टू गेट द फाइनल आंसर. आई डोंट थिंक सो कि ये आपके लिए कोई भी डिफिकल्ट टास्क रहेगा. एम आई क्लियर? चलो देखते हैं आगे. जैसे मैंने कहा था मैं इसमें हिंट ही दूंगा, फिर भी हिंट से मैंने कुछ ज्यादा दे दिया है तो आई होप यू पीपल कैन फिनिश इट बाय योरसेल्फ. 38 सेम थिंग है. देखो 0 से π/4 2 tan क्यूब x dx. अगेन सेम थिंग. पहले तो मैं 2 कॉमन निकाल दूंगा, कांस्टेंट है, और tan क्यूब x को लिखेंगे tan स्क्वायर x इंटू tan x dx. और सेम थिंग जैसे वहां पे क्या आइडेंटिटी का यूटिलाइजेशन, यहां पे भी 1 माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स. एम आई राइट? tan स्क्वायर x नो सेक्स स्क्वायर x माइनस 1 सॉरी सेक्स स्क्वायर x माइनस 1 इंटू tan x dx. और ये 2 इंटीग्रल 0 to π/4 सेक्स स्क्वायर x tan x dx माइनस 2 इंटीग्रल 0 to π/4 tan x dx. इसकी तो डायरेक्ट फॉर्मूला अवेलेबल है. रही बात यहां की तो सेक्स स्क्वायर x tan x कैसे सॉल्व करोगे? तो आपको पता है कि tan का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर ही होता है, इजंट इट? जैसे यहां पे
कॉस का डेरिवेटिव साइन या साइन का डेरिवेटिव कॉस वगैरह आप कर सकते हो, लेकिन इसमें फिर भी मैंने कॉस एक्स को लेट किया क्योंकि मैं साइन एक्स रिमूव कर सकता हूँ। यहाँ पे tan को लेट करेंगे जिससे sec स्क्वायर एक्स dx चला जाएगा, तो सिंपली t बचेगा और t का इंटीग्रल हम सब कर सकते हैं आराम से, उसमें हमें कोई भी डिफिकल्टी होगी नहीं। Am I clear? चलो लेट्स गो फर्दर टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 39। आई गेस मैं आपके लिए ये 39 वाला जो है वो लास्ट प्रॉब्लम रखूंगा, क्योंकि 40 जो है वो एज अ लिमिट ऑफ अ सम का है एंड वी ऑलरेडी डिड दी होल एक्सरसाइज। तो आई बिलीव दैट कि आप उस एक्सरसाइज के तरीके से उसे आराम से सॉल्व कर सकते हो, देयर वोंट बी एनी काइंड ऑफ इश्यू। बट आई गेस 39 भी आप कर ही सकते हो। इट इज गिवन 0 to 1 साइन इनवर्स एक्स dx। अब इसे कैसे करेंगे? तो कि जैसे log x किया था, जैसे tan इनवर्स x अकेला किया था, वैसे साइन इनवर्स x करेंगे, यानी कि बाय पार्ट्स, है ना। यानी हम लिखेंगे 0 to 1 साइन इनवर्स x इंटू 1 dx। u इंटू v का रूल लगाना है, ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड। सो साइन इनवर्स x एज इट इज इंटीग्रल 0 to 1। मैंने आगे बताया, वैसे यहां प्रीफर मत करना, इसमें कहां प्रीफर करेंगे? 1 dx लिख के स्क्वायर ब्रैकेट को 0 से 1 माइनस इंटीग्रल 0 to 1 d by dx ऑफ साइन इनवर्स x इंटीग्रल ऑफ 1 dx करली ब्रैकेट dx। साइन इनवर्स एज इट इज 1 का x लिमिट 0 से 1 माइनस इंटीग्रल 0 to 1 अभी रखते हैं। साइन इनवर्स x की वैल्यू होगी 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव 1 का x dx। ये अगर किसी को डिफिकल्ट लगे तो आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड 0 से 1 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और फिर इसके लिए लेट कर लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू t, सो माइनस 2x dx इक्वल्स टू dt एंड रेस्ट यू कैन अंडरस्टैंड नाउ, है ना। ये तो हो चुका है, लिमिट पुट करनी है सिंपल सा, लेकिन यहाँ पे -2 को इधर दे दो तो माइनस यहां देंगे तो प्लस हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल 0 to 1 dt में चला जाएगा। बट लिमिट, या सॉरी नॉट 0 to 1, लिमिट चेंज करना भूलना नहीं, यहाँ पे आपको फिर लिमिट चेंज करनी है कि व्हेन x 0 है तो t कितना होगा, तो 0 ले लो तो t की वैल्यू 1, फिर x की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 माइनस 1 0। तो लिमिट एक्चुअली 1 से 0 जा रही है, 1 से 0, तो माइनस का यूटिलाइज करके चेंज कर लेना, यूज दैट प्रॉपर्टी माइनस वाली, है ना। एक प्रॉपर्टी मैंने आपको सिखाई थी कि अगर इंटीग्रल a to b f of x dx है तो आप उसको लिख सकते हो माइनस b to a f of x dx। इंटीग्रल में माइनस b to a, मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दैट। उस हिसाब से ना ये 1 से 0 को 0 से 1 में कन्वर्ट कर लेना, बिकॉज वी ऑलवेज कीप द लिमिट फ्रॉम लोअर टू हायर, है ना। अपर लोअर लिमिट और हायर लिमिट में लोअर लिमिट की वैल्यू छोटी होनी चाहिए और अपर लिमिट की बड़ी, तो वो चीज का आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, करेक्ट। सो आई गेस दिस इज इट फ्रॉम दिस एक्सरसाइज फ्रॉम माय साइड, है ना। क्वेश्चन नंबर 40 है, लेकिन वो लिमिट ऑफ अ सम का है, आप लोग आराम से ट्राई कर सकते हो, करेक्ट। और उसके बाद जो बचे हैं वो एक आध दो एमसीक्यू है। सो इफ आई डू द होल चैप्टर, आई डोंट थिंक सो कि मुझे 2 एमसीक्यू चैप्टर के करने में कोई डिफिकल्टी आएगी। सो दैट इज आई एम लीविंग इट फॉर यू पीपल टू प्रैक्टिस, आप आराम से कर सकते हो। कुछ शॉर्ट ट्रिक ऐसी कुछ उसमें बताने को है नहीं फिलहाल, सो आई एम नॉट मतलब मच इंटरेस्टेड। मैंने आपको जितनी हो सके उतनी पॉसिबल शॉर्ट ट्रिक्स बताई है ना। मे बी 1 or 2 आई डोंट नो, तो मैं शायद नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जितनी मुझे पता है आई ट्राई टू शेयर इट विथ यू पीपल एंड आई मेक श्योर कि आपको ये पर्टिकुलर चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आए। फॉर दैट आई हैव टेकन दिस इन अ वेरी मॉडरेट स्पीड। मैं इतना ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि धीरे किया या हमने बहुत स्पीड में किया, वी टुक इट इन अ वेरी मॉडरेट स्पीड। हमने आराम से सब कंप्लीट किया, कवर किया, एक्सरसाइज सॉल्व किए हैं, हो सके वहां पे एग्जांपल्स भी सॉल्व किए हैं, वी डिड एवरीथिंग विच इज पॉसिबल। So this is the end of the chapter and I hope that you love this chapter because it is one of the most important chapter of your 12th standard, क्योंकि इसमें से नहीं तो भी मिनिमम 15 to 20 मार्क्स का आएगा from this single chapter, है ना। So you make sure that study well, prepare in a good way, try to solve few more problems, around 100 and 200 problems extra solve करो। If you want to get a good confidence on integration, you need to solve something extra, correct? And आई होप दैट यू लव दिस चैप्टर। और अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आई हो देन प्लीज लाइक,
करना मुझे, मेरा वीडियो ऑब्वियसली मुझे लाइक करने की जरूरत नहीं है, मेरा वीडियो लाइक करो, दैट वुड बी इनफ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।